Yes, once again, welcome all of you and Happy New Year and good morning all of you. Yes, so today we are going to discuss a very important part of redox reaction, balancing of reactions by ion electron method. Okay, this is important part of chapter. Okay, now in this reaction like that, I minus CrO4 minus. As you know, how redox reactions are balanced by oxidation number method. Okay, means that is very important part of redox reactions to find out oxidation number of each species. Okay, नॉर्मली हमने देखा कि जो हेलोजेंस है उनके ऑक्सीडेशन नंबर -1 होते हैं, बट नॉट इन ऑल केसेस. ओके, एक्सेप्ट फ्लोरीन, other halogens also show different oxidation number, even plus oxidation number also with oxygen or with fluorine, like that, because these are more electronegative. ओके, तो यस, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कि किसी भी रिएक्शन को देख के ऑक्सीडेशन नंबर पता करना, राइट? तो सिंपली हियर chromium trihydroxide, what is the oxidation number of chromium in this compound? Yes, like that, hydroxide ion is -1 ion, है ना? So it means here chromium plus 3 charge. Okay, in IO3 minus में, because this one is the iodate ion, here oxidation number calculate in this way. I का x मान लेते हैं हम और O3 minus, तो there is oxide ion simply is equal to, जो भी साइन पे चार्ज होगा, sum of the oxidation number of all elements present in the species is equal to charge. Here charge is -1, so is equal to -1. Left side is not visible. Yes, beta. Yes. Okay, so like that, x minus 6 is equal to -1. So x is equal to -1 plus 6 is equal to +5. Okay, so in this iodate ion, IO3 minus ion is called iodate ion. Here iodine oxidation number is +5, right? Here I minus, so here oxidation number on iodine is -1. Here chromate ion CrO4 minus. Okay, again here we can calculate. here normal case में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम -2 कंसीडर करेंगे. ओके, तो here x plus 4 into -2 is equal to -1. Here charge is minus, it means -1. So x minus 8 is equal to -1. So x is equal to +7. No. क्रोमेट आयन, इट इज एक्चुअली डाइक्रोमेट आयन बेटा, ना, क्योंकि क्रोमियम का कभी भी +7 ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, मैक्सिमम +6 होता है. तो हियर इज इक्वल टू -2, राइट? तो इज इक्वल टू +6. ओके, तो यस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें रिडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से लिखना है. -1 -2 तो बैलेंसिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर हमने गड़बड़ किया तो. ओके, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. यस मैम, राइट और लेफ्ट साइड विजिबल नहीं है क्लियरली. बेटा लैंडस्केप में देखो, आई थिंक मुझे जो स्क्रीन दिख रहा है इट इज कंप्लीटली विजिबल. मैम लैंडस्केप में ही खोल रखा है. अच्छा, लैंडस्केप में नहीं दिख रहा है. ओके, तो दिस पार्ट इज नॉट विजिबल, क्रोमेट आयन ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, all of you have problem? Yes, sir. Actually landscape में it is clearly visible. Okay, okay, I will try कि मैं यही करती हूँ. Okay, तो in this way, same way, oxygen oxidation number considered -2.
okay, because it is simple oxide, not peroxide, superoxide or like that. So oxidation of chromium is +6. Okay, so first of all, this is important part, oxidation number find out of each element. Okay, here important part is that जो species आपकी oxidized हो रही है, reduced हो रही है, that is important part. Here oxygen में कोई change नहीं हो रहा है, everywhere oxygen in form of -2. Okay, it is not visible. लेट्स सी बेटा, ना मिडिल वाला पार्ट आपको शायद दिख रहा है, तो इट्स ओके, है ना, मैं यही करने की ट्राई करूंगी. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? ओके, डेस्कटॉप पे दिख रहा है, मोबाइल पे प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, यस, है ना. तो लेट्स सी. अब +3 से +6 में जाना, व्हाट इज दिस? +3 से +6 में जाना, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज. इट इज कॉल्ड Oxidation. +3 to +6 chromium goes. So here chromium ion is oxidized. Here oxidation number increases. So this is oxidation. Okay, and iodine में iodine जो है, it is from +5 to -1. Oxidation number decreases, or decreases by which number? -6. Decreases by 6 simply, है ना. +5 से -1 होना means it gains 6 electrons. Okay, so here oxidation number decreases, so this one is the reduction. Okay, तो आज हम अनदर मेथड करेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमने प्रीवियस बिफोर वेकेशन हमने डिस्कस किया था. आज हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड यूज करेंगे. ओके, तो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ रिएक्शन स्प्लिट अप इन 2 पार्ट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ओके, रिएक्शन को हम स्प्लिट करेंगे. तो हियर लाइक दैट CrOH3 convert into CrO4 - 2. Okay, here +3 से +6 में जा रहा है. It means this one is the oxidation, half oxidation reaction. Okay, and another part में हम half reduction reaction लेंगे. ओके, हियर IO3 माइनस, है ना, लिखेंगे हम पूरी स्पीसीज को, ऐसा नहीं कि आयोडीन को लिख लें. ओवरऑल आयोडीन जिस स्पीसीज के अंदर है, होल स्पीसीज लिखेंगे. इट कन्वर्ट्स इनटू I-. दिस इज द हाफ रिडक्शन पार्ट. इज इट क्लियर? हियर सेपरेटली हाफ ऑफ पार्ट बैलेंस करके उसके बाद हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वी बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस वन इज. Okay, here chromium +3 से +6 जा रहा है. It means it loses or gains? Loses. Okay, it from +3 to +6. Only chromium here 1 atom. Okay, so here only we consider 1 per chromium atom loses 3 electrons. So adding here 3 electrons. Right, this one is the oxidation reaction. During the reaction, electrons loses. Okay, electrons lose by this species. Okay, like that. अब now second one is the, सबसे पहले हम ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड होने वाली स्पीसीज को बैलेंस करते हैं. दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. क्रोमियम 1 है, बैलेंस है. नाउ उसके बाद हम बैलेंस करते हैं किसको? ऑक्सीजन एटम को. ओके, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? बाय एडिंग. हाउ वी विल बैलेंस ऑक्सीजन? सेम उसमें जैसे करते थे हम ऑक्सीडेशन. बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, H2O.
Okay, so here 4 oxygen, here 3 oxygen. OH का whole tribe, here 3 oxygen. So left hand side add 1 water molecule for balancing oxygen. Clear? Now in last में हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को. Reactant side how many hydrogens are? 5. 5. Here no any hydrogen. Okay, और अब हमें इंपॉर्टेंट बात है OH माइनस और H प्लस. इफ मीडियम इज बेसिक, ओके, तो आप डायरेक्टली H प्लस एड नहीं करेंगे फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, राइट. इन दैट केस में क्या करेंगे आप? जिस साइड जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल, और अपोजिट साइड सेम नंबर में OH माइनस. आई रिपीट, for balancing of hydrogen, that side number of less hydrogen, उतने आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे और अपोजिट साइड सेम नंबर में OH माइनस. ओके, तो लाइक दैट हियर 5 हाइड्रोजन, इधर 0 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट साइड वी आर एडिंग 5 वाटर मॉलिक्यूल और सेम 5 OH माइनस रिएक्टेंट साइड ऐड कर देंगे. मैम जिस साइड ज्यादा हाइड्रोजन है उस साइड हमें OH माइनस ऐड करना है. यस बेटा, जिस साइड, क्योंकि अल्टीमेट 5 OH माइनस और 5 OH माइनस तो कैंसिल हो गए, है ना, 5 H प्लस ही बने हमारे, है ना. बट बिकॉज ऑफ मीडियम इज बेसिक, तो डायरेक्टली आप H प्लस एड नहीं कर सकते. ओके, तो सो फॉर दैट एड वाटर मॉलिक्यूल एंड अपोजिट साइड सेम नंबर में OH माइनस एड कर दीजिए. ओके, तो अल्टीमेट हमारे यहाँ 5 H प्लस ज्यादा हो गए, ज्यादा मीन बैलेंसिंग के लिए. ओके, और 5 OH इसको बैलेंस, 5 वाटर मॉलिक्यूल के 5 OH बैलेंस कर देंगे. ओके, व्हेन मीडियम इज बेसिक, तो इट इज रोल, है ना. ये OH माइनस और H माइनस ऐसे ही नहीं लिख दिया, इट रिप्रेजेंट मीडियम ऑफ द रिएक्शन. ये मीडियम आपका एसिडिक है या बेसिक है. ओके, और न्यूट्रल होता है तो वाटर लिखा हुआ आता है, राइट. एनी डाउट हियर? No, ma'am. Okay, No, ma'am. now means this half reaction now balanced. Okay, अभी तक till now. अभी हमें एक पार्ट और करना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आते हैं तो, राइट. नाउ लेफ्ट दिस रिएक्शन. ओके, नाउ मूव ऑन हाफ रिडक्शन रिएक्शन. ओके, हियर दिस वन इज +5 से -1 जा रहा है हमारा. इट मीन्स इट गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, लाइक मीन्स रिडक्शन में हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड एड होंगे. ओके, नाउ सबसे पहले I को बैलेंस करना है, ऑलरेडी बैलेंस. दिस वन इज 1I, इधर भी 1I है, ऑलरेडी बैलेंस, है ना. सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड होने वाली स्पीसीज को बैलेंस करना है. देन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. हियर 3 ऑक्सीजन, हियर 0 ऑक्सीजन. व्हाट वी डू? 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन. ओके, नाउ लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन. हियर 6 हाइड्रोजन. तेजस्वी, नाउ विजिबल? यस मैम. इतना पार्ट दिख रहा ना आपको? ओके बेटा. Now here 6 hydrogen, okay, here 0 hydrogen. So what we do to balancing of 6 water molecule ऐड करेंगे, है ना. जितने लेस, ऐसा नहीं कि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है तो हम 3 ऐड करेंगे, नो. जितने इधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उतने वाटर मॉलिक्यूल और अपोजिट साइड सेम OH माइनस, राइट. देखो इसका एक और वे है कि आप जो है चार्ज को देख लीजिए, है ना, कि रिएक्शन हमारी ठीक से बैलेंस हुई कि नहीं हुई. यहाँ पे -1 चार्ज है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 नेगेटिव चार्ज आ रहा है. इधर भी देखिए एक -1 चार्ज यहाँ है और 6 OH माइनस है, 7 नेगेटिव चार्ज है. तो इट मीन दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड. ओके, सेम वे इधर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं हम. यहाँ +3 नो 0 ओवरऑल चार्ज देखेंगे बेटा स्पीसीज से. यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज है. ओके,
यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज इस स्पीसीज पे है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल 5 नेगेटिव चार्ज है, इधर भी टोटल 5 नेगेटिव चार्ज है, राइट, है ना। ओवरऑल स्पीसीज के चार्ज को ऐसे ऐड करके देख लो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इट शुड बी सेम। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. अब हम दोनों रिएक्शन को जब ऐड करेंगे तभी हमारी ओवरऑल रिएक्शन आएगी, ओके। बट बिफोर एडिंग बोथ रिएक्शन एक स्टेप हमें करना है, इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। इधर जितने लूज हो रहे हैं उधर ही गेन होने चाहिए, बट गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लूज 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो व्हाट वी डू, दिस Multiplied by 2. मल्टीप्लाई बाई 2, ओके। बिफोर मल्टीप्लाइंग आप कर सकते हैं कि जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल इधर है, इधर 5 है, तो आप इसको एक माइनस कर सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि सेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट को दोनों साइड। लेकिन फर्स्ट आप इंटीमेट करो सारे, ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। वो तो मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल इधर माइनस कर दिया, तो ये इट लेफ्ट वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट 4, ओके, यस। नाउ ओवरऑल रिएक्शन इज 2CrOH का होल ट्राइस, ओके, 10 OH माइनस। आप लोग भी साथ साथ नोट कर रहे हैं ना, ओके, तभी आपको समझ में आएगी बेटा, अदरवाइज कहाँ क्या मिस कर दिया। 2CrO4 माइनस 2, ओके, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं हम, जो कंप्लीट बैलेंस हो गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इट इज रिएक्शन नंबर फर्स्ट, ओके। नाउ इस रिएक्शन को हमें करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसी को बैलेंस करने के लिए हमने, तो दिस वन इज, इसको भी अगर हम चाहें तो इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल है और इसको हम 3 कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन बन गई, जिसको हम ऐड करेंगे, दैट इज IO3 माइनस प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 6 इलेक्ट्रॉन फॉर्म I माइनस प्लस 6 OH माइनस, ओके। मे बी आई थिंक इज इट नॉट क्लियरली विजिबल, 6 OH माइनस, ओके, लाइक दैट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2, ओके, दैट इज ऑक्सीडेशन half reduction reaction is balanced, okay. Now for getting overall reaction, equation first and equation 2 को हम ऐड कर देंगे, राइट मैम, यस। ऑक्सीडेशन हाफ ऑक्सीडेशन वाली स्टेप में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे आपने H2O ऐड नहीं करा, H2O ऐड नहीं करा, फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 8H2O, किधर बेटा 8 किधर आएंगे, यस, मैं भी एरर की हो मैंने, दिस वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मैम, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट इक्वेशन, यस यस, वेरी नाइस। 4 वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यस 8 वाटर मॉलिक्यूल, यस। एक भी मिस हो गया तो हमारी रिएक्शन अच्छे से बैलेंस नहीं होगी, हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हियर 4 वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट, मल्टीप्लाई बाई 2, तो इट इज 8, वेरी नाइस, यस, है ना। तो फॉर गेटिंग ओवरऑल रिएक्शन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड कर लेंगे हम, ओके, और यहां हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। अब देखिए ऐड करने पे जो रिएक्टेंट साइड चीजें हैं वो ऐड हो जाती है, और जो रिएक्टेंट अपोजिट साइड है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखिए ये तो मुझे लगता है दोनों में डिफरेंट है, इसको तो एज इट इज लिख दीजिए, 2CrOH का होल ट्राइस। अब देखिए यहाँ 10 OH माइनस है, ओके, और इधर प्रोडक्ट साइड 6 OH माइनस है। दोनों रिएक्शन को जब हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर एक में रिएक्टेंट साइड है एक में प्रोडक्ट साइड है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगी, ओके। तो लाइक दैट 10 OH में से 6 OH माइनस गए तो
4OH minus only left, right? And reactant side इधर क्या है? IO3 minus and 3 water molecule. सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो, ओके? इधर 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड, इधर 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड, कैंसिल हो गए, ओके? नाउ हियर ऐसे हमने 10OH और 6OH में से 4OH लेफ्ट बचे यहाँ पे. Same way, 8 water molecule here product side, here 3 water molecule reactant side. So here left 5 water molecule. ओके, क्रॉस में होंगे, सेम साइड होंगे तो ऐड हो जाएंगे, है ना? इधर प्रोडक्ट साइड है, उधर रिएक्टेंट साइड है. तो नाउ ओवरऑल रिएक्शन इज CrOH होल ट्राइस प्लस IO3 भी लिखो रिएक्टेंट साइड, ओके, एंड 4OH माइनस give 2 CrO4 माइनस 2. देखो हर बार नाम का गड़बड़ होता है, ये क्रोमेटाइन है बेसिकली. CrO4 minus 2. Here chromium present in maximum oxidation state, that is +6, and form I minus, okay, and along with 5 water molecule, right? Yes. So now check, it is balanced or not? Here 2 chromium, here 2 chromium, here 1 I, here 1 I, okay? Here how many oxygen? 6 and 4, 7, okay? No, 6 and 4, 10, 10 or 3, 13. Here 4 to the 8 or 8, 5, 13. I think balance. Now 3 to the 6 or 4, 10 hydrogen, here also 10 hydrogen. So completely balanced or not? Yes, ma'am. Completely balanced, है ना? तो this one is the, यहाँ हमने आज 2 चीजें सीखी है. एक बेसिक मीडियम में कैसे हाइड्रोजन बैलेंस करना है, और सेम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी जब भी आप हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो जिस साइड जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल, और अपोजिट साइड सेम नंबर में OH माइनस, ओके? तो अल्टीमेट आपके H+ ही बैलेंस हुए हैं. OH तो कैंसिल हो गए दोनों साइड, है ना? बट डायरेक्टली हम H+ नहीं लिख सकते बेसिक मीडियम में, ओके? बेसिक मीडियम में H+ अवेलेबल नहीं होंगे, ओके? तो हियर एनी डाउट? ओके, नो नो मैम. तो सिंपली दो रिएक्शन को स्प्लिट अप करना है हमें, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन. और ऐसा नहीं कि हर बार स्टेप अलग लिखो, आप उसी स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए, है ना? अदरवाइज इट टेक्स, हमने जब स्टेप्स नहीं लिखे उतने तो भी टाइम लग रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले लिख दीजिए, है ना? ऑक्सीडेशन हाफ में, तो ताकि आप, कई बार हम फर्स्ट सेलेक्ट करने में गड़बड़ कर देते तो वो क्लियर हो जाएगी. अगर प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है, रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो रिडक्शन. इज इट क्लियर? यस. नाउ वन मोर एग्जांपल वी विल टेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके? एनीवन टेल what do you mean disproportionation reactions? Yes, okay. मे बी आप लोगों ने इस बार थर्मो और केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रिपरेशन की है ना अच्छे से, ओके? नाउ वन मोर वी विल टेक एग्जांपल disproportionation reactions. This one is the important part of redox reaction, okay? For this we are taking example like decomposition of H2O2. Okay, this reaction is also example of disproportionation reaction.
प्रोपोर्शनेशन है ना, बड़ा नाम है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना, पोर्शन से आपका नेशन आ जाएगा फिर, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन विच वन स्पीसीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ओके, अभी तो हमारा क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट साइमल्टेनियसली, यस तेजस्वी करेक्ट, one oxidation state simultaneously oxidized and reduced, very good है ना, yes, this mutation तो I don't understand, Edwin, what do you mean this mutation? Basically one oxidation state simultaneously oxidized and नॉर्मली अभी हमने देखा कि क्रोमियम आयन +3 से +6 में जा रहे थे, आयोडीन +5 से -1 में जा रहे थे, है ना। ओके, दिस म्यूटेशन इट इज न्यू नेम, ओके आई विल चेक, है ना एडविन। ओके, दिस म्यूटेशन ऑल्सो कॉल्ड, भाई एडविन कह रहा है बट आई डोंट नो, ओके आई विल कंफर्म एंड देन टेल यू। So simply one oxidation state simultaneously goes in oxidation as well as reduction. Such type of reactions are called disproportionation reaction. Okay, sometimes apply 1 mark may define disproportionation reaction. Okay, but condition is only one species should undergo oxidation as well as in reduction. Okay, here like hydrogen peroxide. In peroxide, oxygen oxidation number is -1. Okay, this one is a peroxide. Yes, students, है ना, normally oxygen oxidation number considered in molecule -2, but it is peroxide. In peroxide oxidation number is -1 और it is water में normal oxide है, तो oxygen oxidation number is -2. In oxygen it is the elemental form of oxygen. Okay, so here oxidation number is 0. So peroxide undergoes -1 to -2 and -1 to 0. -1 to 0 means Oxidation. yes, oxidation. And -1 to -2 Reduction. yes, here oxidation number decreases, so it is reduction. तो H2O2 साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ओके, वन मोर बेस्ट एग्जांपल इज P4, इट इज द फोस्फोरस। फोस्फोरस का एलिमेंटल फॉर्म जो है P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, इन बेसिक मीडियम P4 कन्वर्ट इन फोस्फीन, जैसे आपकी अमोनिया गैस होती है NH3, अमोनिया नाइट्रोजन वाले ग्रुप में ही फोस्फोरस नीचे होता है, दिस इज कॉल्ड फोस्फीन गैस। ओके, phosphine like that. Okay, and one species form H2PO2 minus, sodium hypophosphite बोलते हैं इसको। ओके, H2PO2 माइनस लाइक दैट। NaOH लिया तो हमने Na बन जाता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट लाइक दैट। ओके, अदरवाइज दिस आयन फॉर्म में हम लिखते हैं। तो हियर phosphorus in elemental form, so phosphorus oxidation number is 0. Okay, here like that ammonia में जैसे नाइट्रोजन पे -3 होता है, ऐसे ही phosphorus हाइड्राइड है, तो here PS3 में ऑक्सीडेशन नंबर यस -3 है ना। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन +1 शो करता है और मेटल के साथ -1 है ना। Here what is the oxidation number on phosphorus? कैलकुलेट करके बताओ। +1. वेरी नाइस, है ना। हाइड्रोजन पे +1 है, ऑक्सीजन पे -1 है, तो -4 और +2 तो हमारा कैंसिल होके -2 बनेगा, देन उधर गया तो ओवरऑल +1 है ना। कैलकुलेट करके बताऊं, +1 × 2 प्लस फोस्फोरस जिसका फाइंड आउट करना उसका x मान लो, +2 ऑक्सीजन है
multiply by -2 is equal to -1. ओके, देन ओवरऑल सोल्व करेंगे तो 2 plus x minus 4 is equal to -1. ओके, तो x ये -2 उधर जाएगा, -1 प्लस 2 सॉरी -2 प्लस हो जाएगा और ओवरऑल +1. ओके, यस, है ना, बेसिक मैथ्स है. बट अगर जिन बच्चों के ये प्लस माइनस साइन गड़बड़ होते हैं तो वो ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर भी गड़बड़ निकलेगा. ओके, है ना. तो मीन्स हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है. ओके, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए ना. और इनको सॉल्व करने में एरर भी नहीं करनी है. अगर हमने एरर कर दी तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऐड करते हो आप वो भी गड़बड़ हो जाएंगे आपकी. एम आई राइट ना? Yes, ma'am. दिस इज सिंपल पार्ट बट केयरफुली हैंडल करना है. ओके, बिकॉज 0 से +1 जा रहा है तो हम कहेंगे कि हियर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1. 0 से -3 जा रहा है, हियर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3, है ना. अब आपने +1 की जगह +3 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा. तो हियर phosphorus simultaneously oxidized and reduced, so it is another example of disproportionation reaction. ओके, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कर सकते हैं और हाफ रिएक्शन मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं. तो वी विल डू वन मोर प्रैक्टिस ऑफ हाफ रिएक्शन मेथड. ओके, इस रिएक्शन को लेके हम एक और प्रैक्टिस करते हैं आज. और जब भी एलिमेंटल फॉर्म है याद रखना है ऑक्सीडेशन नंबर इज, है ना. अभी हम ये रिएक्शन बैलेंस करेंगे. यस, P4 नाउ रिएक्शन में लिख रही हूं यहाँ पे P4 प्लस, है ना, OH माइनस, नो नीड, ऐसे भी लिख सकते हैं एरो के न्यूट्रल मीन्स बेसिक मीडियम इज रिक्वायर्ड एंड फॉर्म. और इस पे स्टार लगा लो बेटा. दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी. PS3 plus H2PO2 minus. Here is -3, here is +1 और here is 0. Okay? Yes. Same like that. Oxidation half reaction हम split करेंगे. Here one species ही oxidized हो रही है, लेकिन oxidation के टाइम oxidized product लिखने हैं और reduction के टाइम reduced product लिखने हैं. Okay? तो first I write here oxidation half. ओके, आप लोग भी साथ साथ लिखेंगे बेटा अपनी अपनी नोटबुक में तो क्लियर होगी अच्छे से. रिडक्शन हाफ. ऑक्सीडेशन हाफ में P4 फॉर्म्ड H2PO2, 0 से +1 जा रहा है. हियर रिडक्शन हाफ में P4 फॉर्म PS3, 0 से -3 जा रहा है. Right? First we balance H2PO2 minus, actually overall -1 चार्ज, बट 0 से +1 जा रहा है फॉस्फोरस. बट जो आयन बन रहा है आपका H2PO2. ओके, डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड भी बोलते हैं इसको, लाइक दैट. ओके, या हाइपोफॉस्फाइड आयन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि H2. ओके, लाइक दैट. यस, तो बेसिकली सबसे पहले हम देखो यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एक फॉस्फोरस आपका 0 से +1 में जा रहा है, तो वी हैव हियर 4 फॉस्फोरस, राइट, है ना. तो आपको यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए सबसे पहले, ताकि वो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा. 0 से +1 बनने पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो 4 फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. यहां हम एरर कर देते हैं कई बार. हमें लगता है कि एक फॉस्फोरस, लेकिन दिस स्पीसीज कंटेन 4 फॉस्फोरस एटम, सो ईच पर फॉस्फोरस एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन. सो ओवरऑल लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये कई बार हम एरर करते हैं. डाइक्रोमेट आयन का भी कोई एग्जांपल आता है तो वहां भी करते हैं, और जहां भी मोर देन 1 एटम होते हैं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले उस स्पीसीज में, तो दैट टाइम ये एरर हो जाती है.
So here 1 loses 1 electron to form +1. So here 4 phosphorus so loses 4 electron. Is it clear? Yes, Say ma'am. yes Yes, or ma'am. no? No any response? Yes. Why? Yes, ma'am. Okay, thank you. Now Yes, sir. है ना, नाउ सेम फॉस्फोरस हमने बैलेंस कर दिए, 4 है इधर, 4 सबसे पहले, ओके, देन उसके बाद बैलेंस करना ऑक्सीजन। हियर हाउ मेनी ऑक्सीजन? 8। रिएक्टेंट साइड 8 वाटर मॉलिक्यूल फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ओके, नाउ बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, हियर 4 2 is 8 hydrogen, here 8 2 just 6, 16 na, so there are 16 hydrogen. So which side more hydrogen? Reactant side. Reactant. तो हम 8 वाटर मॉलिक्यूल इधर भी ऐड कर दें, है ना, 80 करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 8 तो यहाँ भी है और 16 यहाँ पे, तो टोटल 8 लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड है। So 8 water molecule 8 because medium is basic. Acidic होता तो हम डायरेक्ट 8H+ ऐड कर लेते, but medium is basic, so 8H2O and opposite side same 8OH- ऐड कर देंगे, right? So I think this reaction is completely balanced. हाइड्रोजन तक बैलेंस हो गया। चार्ज को क्रॉस चेक कर सकते हो, यहाँ 4 नेगेटिव चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इधर भी 8OH- 8 नेगेटिव चार्ज, बोथ साइड चार्ज इज इक्वल, इट मीन्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, इट इज ऑल्सो इंडिकेशन। नाउ हियर P4 convert into PS3. Again here 1 per phosphorus loses 3, gains 3 electron. So here 4 phosphorus. So these 4 phosphorus gains how many electron? 4 3s are 12. Here 8 12 electron in reactant side. Okay, and 4 PS3 formed. Okay, now oxygen है नहीं, phosphorus बैलेंस हो गया, पहले phosphorus बैलेंस किया, then oxygen, no any oxygen here, reactant and product side दोनों साइड नहीं है। Now hydrogen balance, here 4 3s are 12. Okay, तो reactant side 12 hydrogen less, so 12 water molecule ऐड किया, और opposite side 12 OH-, right? Any doubt here? नो, ओके, है ना, रिंकू मैम एक बार में अच्छे से समझा देती है ना, नो एनी डाउट, एम आई राइट? मैम। Yes, ma'am. ओके, रितिका कहती है नो मैम, मैं वो तो डाउट के लिए कह रही होगी। मैम एक डाउट है। यस यस, वेलकम। मैम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी H2O ऐड करा, बट रिडक्शन हाफ साइड में हमने बस एक जगह H2O ऐड करा। यस माय डियर, बिकॉज ऑफ हियर नो नीड, हमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कभी कभी ऐड करना पड़ता है ना। इधर हमने कैसे ऐड किए बेटा? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किया। पहले जो हमने 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं हम? बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, लाइक दैट। हियर 4 2 is 8 ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट साइड हमारा एक भी ऑक्सीजन नहीं था, तो हमें 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके ऑक्सीजन को पहले बैलेंस किया। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में हमने ये 8 हाइड्रोजन क्यों आए, 8 वाटर मॉलिक्यूल क्यों आए हैं? फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज इधर ऑक्सीजन बैलेंस करने से हमारे 16 हाइड्रोजन हो गए, इधर 80 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हमें हाइड्रोजन फिर बैलेंस करने हैं, तो फिर हमने 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, अपोजिट साइड 8 OH- किए। यस बेटा, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, ये स्टेप टू स्टेप हमें जाना चाहिए वैसे तो। ओके ओके मैम, क्लियर। फॉर दैट ये ऐसे 8 हमने एक साथ नहीं किए, फर्स्ट 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड,
Another 8 water molecule product side इसीलिए ऐड किए फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो जितने ये ऐड किए हमने अपोजिट साइड उतने ही 8 OH माइनस भी ऐड किए, राइट? यस मैम। ओके, तो सेम वे हियर नो नीड ऑक्सीजन बैलेंसिंग। ओके, तो डायरेक्टली हमने 4 3 12 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड, बट रिएक्टेड साइड 0 हाइड्रोजन, सो एडिंग 12 water molecule and product side 12 OH minus, right? Now again for adding reaction, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करने से पहले रिडॉक्स रिएक्शन का रूल है, थंब रूल। व्हाट इज थंब रूल? मैम इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। Yes, losing of electron and gaining of electron should be same, but here gains 12 electron but loses only 4 electron. Okay, so what we do? Multiply by 3. Yes, oxidation half reaction multiply by 3. Okay, means simply इस रिएक्शन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इससे पहले एक काम कर सकते हैं, ये 8 वाटर मॉलिक्यूल को ये 8 वाटर मॉलिक्यूल को कैंसिल कर दो। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड आ रहे हैं, देयर इज नो मीनिंग, राइट? यस, नाउ 3p4 प्लस 8 3 24 OH माइनस फॉर्म 4 3 12 H2PO2 माइनस प्लस 12 electron. This one is the equation number 1. Complete balance हो गई जैसी हमें चाहिए, ये equation number 2. Now equation number 1 and equation number 2 को हम add कर सकते हैं, right? Equation number 1, on adding equation number 1 and 2, on adding equation 1 and equation 2, okay, overall reaction we will get. अब देखो ये 3p4 है, ये 1p4 है ना, तो 4p4 हो जाएंगे आपके, राइट? तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 4p4 लिख दूं। पहले कैंसिल आउट वाली चीजें कर लेते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन इधर, 12 इलेक्ट्रॉन इधर, ओके। इधर 24 OH माइनस है, इधर प्रोडक्ट साइड 12 OH माइनस है, कैंसिल कर सकते हैं, तो हियर लेफ्ट 12 OH माइनस, ओके। हियर वाटर मॉलिक्यूल 12, अदर साइड कई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ओके, लाइक दैट, है ना। तो 4p4 के साथ हमारे 12 OH माइनस भी आएंगे, राइट। नाउ प्रोडक्ट्स में हमारे 12 H2PO2 माइनस है, तो इनके आगे हमने 12 लगा दिया। PS3 हमारे 4 है, तो ये 4 PS3 लगा दिया हमने, और लेकिन अलोंग विथ 12 वाटर मॉलिक्यूल भी है भाई, ओके। तो हियर 12 वाटर मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे हमारे, ओके। तो ये तो ओवरऑल रिएक्शन आई, बट रिएक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम? यस मैम, डिवाइडेड बाय 4। यस, तो हियर एनी डाउट? एनी डाउट हियर? नो मैम। मैम वन क्वेश्चन, बेटा ऐड करने में क्या करो कि इधर रिएक्टेंट साइड 24 OH माइनस है, तो उस वाली रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट साइड कहीं OH माइनस आ रहे हैं क्या? 12 आ रहे हैं, तो कैंसिल आउट कर दो, लेफ्ट ओनली 12 OH माइनस, ओके। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर लूजिंग हो रहे हैं, इधर गेन हो रहे हैं, कैंसिल कर दिया हमने। नाउ 12 वाटर मॉलिक्यूल है, वो प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड है, तो हमने भी रिएक्टेंट साइड उनको एज इट इज लिख दिया, राइट, ओके। और बाकी जितने नंबर इनके बन रहे थे, बट रिएक्शन क्योंकि हम सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, बट हम चाहें तो सिंपलेस्ट रेशियो में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दैट। तो ओवरऑल रिएक्शन डिवाइडेड बाय 4
to get simplest ratio reaction divided by ओके तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी P4 plus 3OH minus plus 3 water molecule form PH3 plus 3:2. ओके अब देखो 4 फॉस्फोरस है 4 फॉस्फोरस हो गए 3 यहाँ और 1 यहाँ ओके 6 ऑक्सीजन है 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए हाइड्रोजन 3 and 6 9 है 3 और 6 9 है तो रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड और नॉट Yes, ma'am. Balance, ma'am. yes so this is the reaction in simplest form okay simplest ratio of each reactant and product in the reaction okay so this reaction is the best example of disproportionation reaction in which simultaneously P4 oxidized and reduced okay so very important part is first to see देखो नॉर्मली आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर लाइक -2 +1 कंसीडर करते हैं बट कुछ केसेस में आपको ध्यान रखना है ओके पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है ऐसे हेलोजन का नॉर्मली -1 होता है बट हेलोजन आपके अगर ऑक्सीजन के साथ है फ्लोरीन के साथ है तो हेलोजन के ऑक्सीडेशन नंबर कोई एक्स करके हम निकालेंगे ओके तो इनको बोलते हैं जिनके एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उनको वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स बोलते हैं ओके जैसे हमारी एल्कलाई मेटल्स फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स और सेकंड ग्रुप की मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो मेटल्स है लाइक स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज +2 से लेके +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं क्रोमियम +1 से लेके +6 तो दीज metals show variable oxidation states okay sometimes जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे HNO3 is the good oxidizing reagent okay because नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो सकता है +5 और दैट इज प्रेजेंट okay so it means it only gains electron so itself reduced and oxidized to others so it is the good oxidizing reagent okay तो हम और डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे तो आज हमारा क्लियर हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती है एंड बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम कैसे तो आप कुछ हमारी बुक में जो एग्जांपल्स हैं और प्रैक्टिस करेंगे राइट तो थैंक यू सो मच ओके नाउ आई एम टेकिंग अटेंडेंस yes students yes attendance please Thank you, ma'am.